Hello, thank you very much. It is another lecture on the math of class 6 about whole number and the integer. In my every lecture, you can find some repetition. Why? Because it is very difficult for the student where I am teaching to remember the back laws of mathematics. अब देखिए, this is a number line. From 0 to 9, as I have told you, it is the 10 digits. But number starting from 1 is known as natural number 1 to infinity. Whole number from 0 to infinity. But 1 is the smallest natural number. Largest number not known because infinity is not a number. 0 is the smallest whole number. It is very, very important. Some addition property and multiplication property here given. I will give subtraction property also. But addition property, it is the same as taught in the previous classes. If you add one whole number to the another whole number, result is whole number but same. Whether you add a plus b or b plus a, it is associate closure property. Additive property, if you add 0 to any number, natural or whole number, it will remain the same. Associative property is important. Important means there are 3 addend, and if you change the position of addend, results remain the same. That is the 3 property here of addition. Multiplication, same thing. Now the student should taught 2 1 is 2, 2 4 is 8, 4 2 is 8. 2 4 is 8, 4 2 is 8. It is called the closure property. अब देखिए, if you multiply 1 to any number, 1 1 is 1, 1 9 is 9, 1 10 is 10, number remains the same. It is existence property. Associative property, if you have 3 whole number multiplied together by any arrangement, results remain the same. Distributive property is important because distribution यहाँ पर b plus c and you have to multiply by a. So you have to use the algebra. What? A should be multiplied by b first, then plus a should be multiplied by c. अब देखिए, ये बहुत अदर प्रॉपर्टी. जीरो प्रॉपर्टी, अगर आप जीरो यू मल्टीप्लाई एनी नंबर, डेसिमल नंबर, rational number, fraction, always 0. A can be any number. Successor of any number, if you add any number or any whole number, any rational number, fraction, it is a successor, successive. Precedent, subtract 1, it is a precedent. So here you say 6 is successor of 5, 4 is a precessor of 5. Addition and subtraction of the whole number on number line. एक क्लास 1 का सब्जेक्ट है, देखिए जो है 3 plus 5 वेरी इंपॉर्टेंट है. तो नंबर लाइन 0 से 10 तक खींचिए और पॉजिटिव को अपवर्ड डायरेक्शन दीजिए और माइनस को नीचे. सिंस इट इज एडिशन, तो यहां से लेकर देखिए 5 काउंट हुआ है, यहाँ 3, 5 plus 3 इक्वल टू 8. अब यहाँ जरा ध्यान सुनिएगा, लेकिन अगर इसी को 3 plus 5 कहा जाएगा तो आपको पहले 3 करना पड़ेगा फिर 5 करना पड़ेगा, क्योंकि 6 के स्टूडेंट हैं, क्लास 1 के स्टूडेंट नहीं है, क्लास जो कि मैंने बार बार बताया जाए. तो ये ध्यान रख लीजिए, द फर्स्ट नंबर शुड बी प्लॉटेड फर्स्ट एंड सेकेंड, देन इट इज द एडिशन. अब देखिए यहाँ पर स्टेप सब लिखा गया है, क्या क्या करना है. काउंट करिए, सेमी सर्कल बनाइए, फॉरवर्ड साइड में नंबर लिखिए, फिर काउंट करिए, सेमी सर्कल बनाइए, फिर करिए, और इसको 5 स्टेप्स आर गिवन, और इसे फॉरवर्ड काउंटिंग बोलते हैं एडिशन में. और सब्सट्रैक्शन में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 5 minus 3. वहां पर क्यों 5 पहले लिया था, क्योंकि 5 minus 3 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा. तो 5 के लिए पॉजिटिव करना है तो पहले यहाँ काउंट करके 5 करिए, सेमी सर्किल बनाइए और 3 5 से शुरू करिए, 1 2 3. तो यहाँ पर 3 ले जाइए और फिर इसको काउंट करके 5 minus 3 इक्वल टू 2. तो ये आपका ऐसे आपका जो मैंने उसमें होता है, ऑल स्टेप्स आर हियर रिटेन, सो देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर दैट. अब देखिए, एनी नॉन जीरो होल नंबर
-0 is a non-zero number. Example this. Any non-zero whole number -1 is a preceder. Count 5 whole number from forward direction and draw the vertical line 5. ये सब लिखा हुआ है, इसको बच्चे पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे जो है। अब देखिए डिवीजन ऑफ ए होल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिवीजन की प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है कि किसी होल नंबर में होल नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। ये ध्यान रखिएगा, होल नंबर की बात हो रहा है, होल नंबर फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट 0। इफ 0 इज डिवाइडेड बाई एनी नॉन जीरो नंबर, रिजल्ट इज ऑलवेज 0। डिवीजन फैक्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपका जो 6 डिवाइडेड बाई 2 इसको लिख लेते हैं तो डिवीजन फैक्ट हो जाता है, या डिविडेंट है, डिवीजन क्वेश्चन है। बट अगर ये 2 इंटू 3 इंटू 6 लिखते हैं, ध्यान सुनिएगा, तो ये मल्टीप्लिकेंट हो जाता है, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होता है। अंतर क्या है कि यहां पर क्या है कि 2 इंटू 3, 2 को इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एडिशन फैक्ट भी बोलते हैं, 2 + 2 + 2 = 6। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, डिफिनीशन से पहले पढ़ाया जा चुका है। सुटेबल प्रॉपर्टी इन मैथ, सुटेबल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको मल्टीप्लिकेशन में सुटेबल प्रॉपर्टी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे 110 को 100 + 10 लिख सकते हैं, 98 को 100 - 2 लिख सकते हैं। और अब जैसे मल्टीप्लाई करना है, अब आपको कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा। 50 × 200, 25 × 4 200, ये याद रखना पड़ेगा आपको जो। अब देखिए सॉल्व द फॉलोइंग बाय सुटेबल मेथड, अब ये कह रहा है। अब देखिए 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 99 तक है। अब देखिए 95 + 500, 4 + 100, ये 100 हो गया, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो गया। ये सुटेबल मेथड इसको बोलते हैं कि अप्रॉक्सीमेट मेथड। यहां पर भी उसी तरह से दिया गया है, ये 500 हो जाएगा। अब देखिए अगर आपसे कहा जाए कि 843 को 110 से मल्टीप्लाई करिए, सपोज कहा जाता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर हमने बता दिया है, 9 बार 5 को 9 बार लिखे 5 डिजिट, और 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स 1 लिखे 2 0 कर दीजिए, 8 कर दीजिए। A bus moves at a constant speed of 96 किलोमीटर in 1 hour. Find the distance travel in 14 hour. 1 hour में इतना है तो 14 hour में ज्यादा होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए इंटीजर्स, ये चार्ट थोड़ा मैं बड़ा किया हूं क्योंकि यहां से राइट हैंड साइड में आपको डिजिट्स है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ध्यान सुन लीजिएगा। लेकिन आपका इंटीजर जो है -∞ टू +∞ होता है, यानी इस 0 के लेफ्ट हैंड साइड में भी निगेटिव इंटीजर्स है और इसके बाद में पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान सुन लीजिएगा। उसी चीज को हमने समराइज यहाँ पर किया है वेरी नाइस वे। देखिए 0 इज ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर, यार 0 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, डिफरेंस हमने बताया है। अब देखिएगा negative integers minus on the left hand side, here the left hand side, it varies from -∞ to 0। -∞ जो है सबसे छोटा हो जाएगा, वहां पर +∞ सबसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन कोई इसमें इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लिखे नो स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर, नो लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर। अब यहां देखिए 0 से राइट हैंड से आएंगे तो इंक्रीजिंग, ascending order और पॉजिटिव इंटीजर। हियर जाएंगे तो डिसेंडिंग, निगेटिव इंटीजर्स डिसेंडिंग, अपोजिट टू ईच अदर। एवरी निगेटिव इंटीजर हैज 1 and only 1 पॉजिटिव इंटीजर एंड वाइस वर्सा। -1 निगेटिव इंटीजर है तो 1 ही केवल एक पॉजिटिव हो जाएगा जो है। एब्सोल्यूट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब जो है निगेटिव, कोई भी निगेटिव इंटीजर है उसके एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रख लीजिए। अब इसको ध्यान में रख करके इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी है, देखिए 5 + 4
9 होगा पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव के लिए ये भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, इसको इधर जोड़िए चाहे इसको इधर, एडेंड 1 को एडेंड 2 में जोड़िए, एडेंड 2 को एडेंड 1 में जोड़िए, रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा जो है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सम ऑफ मोर देन 3 पॉजिटिव और निगेटिव एडेंड आर सेम विद चेंजिंग द ऑर्डर, ऑर्डर चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो है। एडिटिव इनवर्स, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फाइंड द एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ दिस, देखिए माइनस, या ध्यान से सुनिएगा, माइनस -115 -125, तो पहले यू हैव टू सॉल्व दिस वन, सो -25 -25 का 25 तो -25 हुआ सोल्यूशन फॉर दिस। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एडिटिव इनवर्स का जो है, कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 इक्वल टू 5, मतलब प्लस का माइनस, और इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। अब देखिए सब्सट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, जो मैंने पहले कहा था, आप ये देख लीजिए, सब वही चीजें हैं। मतलब जो है अगर किसी इंटीजर को उसी इंटीजर का तो 0 आएगा, 0 को घटाएंगे तो वही आएगा, और ये आपका है तो इस तरह से। अब यहाँ पे ये है कि a माइनस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन a माइनस b, अगर a b से बड़ा है तो। अब एग्जाम्पल दिया है a इक्वल टू 8, b इक्वल टू इतना, c इक्वल टू इतना, घटाइए देखिए निकलता कि नहीं निकलता। फिर देखिए एग्जाम्पल 2, राइट ग्रेटर, और उसी तरह से आप एग्जाम्पल भर सकते हैं, मैंने भर दिया है यहाँ पर। रीअरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, अब मैंने बता चुका है कि माइनस में जो है इंटीजर लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो घटेगा, और राइट हैंड साइड में वो बढ़ेगा, उस हिसाब से लिखना होगा। जैसे अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपका जो है एग्जाम्पल स्टेप सॉल्यूशन फॉर ए, ये क्या है आपका जो है, ये नहीं होना चाहिए, फर्स्ट 2 -3 0 है, और ये 1 -5 है, जरा देख लीजिएगा यहाँ पर। अब इसको क्या करना चाहिए, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने इसका लिखने का तरीका दे रहा हूँ कि निगेटिव को एक साथ कर दीजिए, पहले कर दीजिए, क्योंकि आपको असेंडिंग ऑर्डर में देना है। तो यहाँ देखिए -3 है, फिर -5 है, ये निगेटिव वाला एक साथ आ गया, और दूसरा देखिए 2 है, फिर आपका 0 है, फिर 1 है, ये हो गया आपका। अब आपको पता होगा कि -3 इज ग्रेटर देन -5, क्योंकि ये डिसेंडिंग है, तो -3 को पहले लिख दीजिए और -5 को इधर लिख दीजिए। अब 0 1 2 में 0 सबसे छोटा है, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो दैट इज हाउ यू कैन राइट, और डिसेंडिंग ऑर्डर उसी तरह फॉलो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अब यही है फाइंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग द नंबर लाइन। 5 मोर देन 2 मीन्स 5 को 2 में जोड़ना है, ठीक है ना। 6 लेस देन 3 मैंने 6 को 3 में से सब्सट्रैक्ट करना है, दिस इज द लैंग्वेज। अब सॉल्यूशन फॉर बी क्या दिया है, 6 लेस देन 3, तो यहाँ पर निगेटिव बनाइए, तो 3 पॉजिटिव है तो ऊपर ले जाइए, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो -3 पे आके अटक जाता है, तो आपका रिजल्ट क्या हुआ, -3 हुआ। दैट इज हाउ you can write. It is a forward counting, this is the backward counting or reverse counting. निगेटिव हमेशा रिवर्स काउंटिंग में होता है या बैकवर्ड काउंटिंग में होता है, हम पहले वाले रिजल्ट्स में मैं बता चुका हूं। तो अभी देखिए 3 -6 इक्वल टू -3, तो ये फिगर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर नंबर लाइन पर क्वेश्चन पूछा गया है तो। If question is based on number line, you have to follow these steps. अब ये आपका जो एग्जाम्पल दिया गया ट्रू एंड फॉल्स, आई थिंक यू कैन डू वेरी वेल, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। और राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 25, तो -25 हो जाएगा। हम एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
जिससे कि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हो जाएगा -25। उसी तरह सबका कर दिया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सम ऑन द इंटीजर्स नंबर लाइन, अब इंटीजर्स लाइन पे करना होगा शब्द, जैसे कि मैंने बताया है आपको जो है। उसी तरह से ये भी है, सब एग्जाम्पल रिमेंबर करिए यहाँ पर कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेम साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अपोजिट साइन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपका, देखिए। सॉल्व द फॉलोइंग, यहां से लेकर के यहां तक सॉल्व करना है आपको। तो उसमें क्या करना चाहिए, पहले इस ब्रैकेट को खोलिए तो -1520 हो जाएगा, प्लस प्लस को एक साथ लाइए, माइनस माइनस को एक साथ लाइए, फिर ऐड कर दीजिए। ए बी आर टू इंटीजर्स सच दैट ए इज प्रेसिडेंट ऑफ बी, तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी -1। ए सिंपल वे है, a minus b is equal to -1. Thank you very much for watching. If you have any question, you can talk to me.